Good morning, student. Today we will discuss exercise 20C, and we had discussed till 20B. So 20C exercise is based on circumference of circle and area of circle. Okay. So your first question of 20C is the diameter of the circle is 28 and you have to find the circumference and its area. Okay. As you all know, diameter is double of the radius. So D is equal to 28 centimeter here, and so radius will be D by 2 and D is 28 is equal by 2 and radius will be 14 centimeter. Okay. So from here we have to find the circumference. Circumference of circle. Circumference of circle, which is 2 pi r and 2 into pi. Pi is a rational number. I think you all आप सभी जानते हो ना. तो so pi, but in mensuration we take pi as 22 by 7. Okay, approx value of pi, which is 22 by 7 into r. Okay, so now 7 to the 14, and if you multiply this, and you will get 88 centimeter. See, now area of circle, area of circle is pi r square, and again the value of pi and r 14 into 14. Okay, r square है तो आपने 14 into 14 2 times डाल दिया है, so pi 2 times and 44 multiplied by 14, and you will get 6 8 5 6 and 5 61 centimeter. So area of circle and circumference of circle. This is the solution of question number first. See, so question number second is similar to question number, but now we will see question number third. Question number third is sum of the circumference and diameter of a circle is 116. So you have to find the radius of this circle. So now circumference of circle is 2 pi and the diameter of circle is 2r is equal to 116 centimeter. So now take 2r common here. So what we get is at pi plus 1 16. Okay. So r pi is 22 by 7 plus 1 and 116 divided by 2, and you will get 58. Okay, 5 plus 10 and 16. So r is equal to, now r, take 1 here and LCM 22 plus 7 and is equal to 58. Is equal to 58. So r is equal to 29 is equal to 58. So r is equal to 58 multiplied by 7 divided by 29, and 29 is 58, so your r will be 14 centimeter. Okay, so in this question we have to find the value of r, which is radius of a given circle. Okay, so question number third. So now we will see question number 4. Question number 4, it's saying that there is a circle which has circumference equal to the sum of the circumference of these two circles. ठीक है, the question में 4 क्या कहता है कि आपका एक सर्कल है जिसकी जो
सर्कमफेरेंस है वो इसके सर्कमफेरेंस और इसके सर्कमफेरेंस के सब के इक्वल है, तो वो जो सर्कल है उसकी रेडियस पता करनी है। ठीक, तो हमने ये लिखा है आपको, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ दीस टू सर्कल्स इज इक्वल टू r। तो यहीं पे इसी कंडीशन को लिखा है, काम करता है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख लीजिए, हालांकि पूरे क्वेश्चन लिखिए। circumference of first circle is 2 pi r1, second circle is 2 pi r2, and required circumference of circle is 2 pi r. See, 2 pi is common, so 2 pi r common ले लीजिए यहाँ से, r1 plus r2 is equal to 2 pi and r. 2 pi cancel by r, 2 pi cancel by 2 pi here, so r1 plus r2 is equal to r. So r1 is 51 and r2 is 80 centimeter, and here is r. So you will add this, you will get 43 centimeter is equal to r. So this is the radius of required circle. ठीक है, जो सर्कल था जिसकी सर्कमफेरेंस इन दोनों के सम सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल थी, उसकी जो रेडियस है वो बेटा वो होगी 43 सेंटीमीटर। ओके, so now we will see question number 7. Question number 7. Okay, so question number 5 and 6. Question number 5 and 6 is similar to question number 4. So you can try yourself now. So we will see question number 7 here. Okay. 5. Question number 7 बेटा कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 मीटर है। ठीक है, तो आपको एक सर्कल की सर्कमफेरेंस निकालनी है जिसका एरिया इसके एरिया से 49 टाइम्स है। ठीक, so let the radius of required circle, you can see, let the radius of required circle or you can say second circle, okay, of required circle is equal to r. Okay, so area of required circle भी क्या नाम है इसको, is equal to area of given circle. Given, लेकिन क्वेश्चन उल्टा ये कह रहा था कि जो सर्कल है उसका एरिया इसके एरिया से 49 टाइम्स है। ठीक है, 49 टाइम्स है, तो इट मींस ये 49 टाइम्स है, ये बड़ा है ये छोटा है, और दोनों को इक्वेट करने के लिए हमें यहाँ 49 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, सो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज 5r square and again 49 into 5, r is 5 of given circle. Okay, so see 5 cancel by 5 and r square is 49 into 25 and r is equal to square root of 49 into 25. So r is equal to, see, square root of 49 is 7 and square root of 25 is 5. So radius will be 35 centimeter of required circle. So now we have to find the circumference of that circle. ठीक है, so circumference of required circle. Circumference of required circle, which is 2 pi r. 2 into 22 by 7 into r is 35. Now 7 cancel by 35 cancel by 7 5 times. Okay.
5 to the 10 and you will get 220 centimeter circumference. Okay, so this is the solution of question number 7. So we will see question number 8. In question number 8, we have a cardboard of dimensions 25 by 42. ठीक, जिसमें से हमें एक लार्जेस्ट एरिया का सर्कल कट करना है, लार्जेस्ट एरिया का सर्कल कट करना है. ठीक, तो देखिए मैंने इसको इस विड्थ के अकॉर्डिंगली बनाया है. जैसे कि आप देखिए, अगर मेरे पास एक कार्डबोर्ड है, अगर मैं डायमीटर इसके रेस्पेक्ट कर लूँगा, है ना, लेंथ के रेस्पेक्ट में डायमीटर लूँगा, तो बेटा ये जो है इलिप्स शेप में आ जाएगा. ठीक है, इलिप्स शेप में आ जाएगा. तो इसलिए हम इसको अगर विड्थ के रेस्पेक्ट में इसका डायमीटर है, ठीक है, इसलिए ताकि वो उस कार्डबोर्ड के अंदर ही सर्कल हमारा हो जाए. ठीक, इसलिए मैंने इसको जो विड्थ के रेस्पेक्टिव इसका डायमीटर सर्कल का दिया है. तो आगे देखिए, इस क्वेश्चन में आप सीख करता कि कार्डबोर्ड है आपके पास, उसमें से एक सर्कल कट किया गया है, और उसके बाद जो आपको ये जो वेस्टेज बचेगा, ये है ना, इस वेस्टेज का एरिया क्या होगा और इसका सर्कल का एरिया क्या होगा. निकालने के बाद आपको रेशियो बताना है कि जो ये सर्कल का एरिया और रिमेनिंग कार्डबोर्ड का एरिया का क्या रेशियो है. ठीक है, तो फिगर से आप देख रहे हो कि डायमीटर है सर्कल का वो 42 सेंटीमीटर होगा. ठीक है, सो हियर डायमीटर ऑफ सर्कल, हियर डायमीटर ऑफ सर्कल, diameter of circle is equal to 42 centimeter. So radius will be 42 by 2 and 4 to the 21. ठीक है, 21 सेंटीमीटर इसकी जो रेडियस है. ठीक, सो एरिया ऑफ सर्कल, area of circle, area of circle is equal to pi r square, and pi is 22 by 7 and r is 21 into 21. Okay, 7 is 21, so 2066 multiplied 21. ये आपका एरिया है. इसको अभी ऐसे रख दो क्योंकि हमें आगे रेशियो निकालना है, उसमें कट करने में हेल्प करेगी. ठीक, सो नाउ वी विल सी एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड. रिमेनिंग area of remaining cardboard is equal to L into B minus this area. L into B is 55 into 42 minus 66 into 25. ठीक है, इसको देखिए आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, लेकिन मल्टीप्लाई करने से बेहतर मुझे क्योंकि आगे हमें रेशियो निकालना है. ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से थोड़ा सा अवॉइड करेंगे. यहाँ पे 11 और 21 कॉमन आ रहा है. ठीक है, 11 5 25 and 11 66. ठीक है, 11 भी कॉमन आ रहा है और 21 भी कॉमन आ रहा है. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 11 into 21. तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा 5, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 2. ठीक, माइनस यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ पे बचेगा 1. ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 11 into 21 और हम इसको सॉल्व करेंगे. 5 to 10 10 6 is 4. ठीक है, ये हमारे पास इसका रिमेनिंग कार्डबोर्ड एरिया आ गया. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो
सो रेशियो सी हियर, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखेंगे रेशियो इज इक्वल टू, देखिए सर्कल का रेशियो, सर्कल के एरिया का रेशियो डिवाइड बाय नीचे जो बचा है उसका रेशियो 11 into 21 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, सो 21 कैसे 21, ठीक है, 11 6 is 26 and 2 3 is 6 and 2 3 are 4, so ratio will be 3:2। 3/2 का बेटा जो रेशियो होगा वो एरिया ऑफ सर्कल एंड रिमेनिंग पार्ट होगा जो 3/2 रेशियो होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो जब कभी रेशियो वाली बात है तो मैं आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा बच गया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया ना, मल्टीप्लाई कॉमन पार्ट का कॉमन पार्ट देंगे, ठीक, सो योर आंसर विल बी 3:2। So students, now we will see the question number 9। ठीक है, the question number जो 9 है उसमें हमारे पास एक कार्डबोर्ड है जिसमें 4 सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं, निकाले गए उसमें से 4 सर्कल्स। तो ये जो बाकी के जो एरिया बचेगा, ये जो बाकी का एरिया बचेगा उसका हमें पता लगाना है कितना एरिया बचेगा। ठीक, सो स्क्वायर जो इस कार्डबोर्ड है आपका जो स्क्वायर शेप में है उसकी जो साइड है मुझे रखी है 28 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें इस जो रिमेनिंग पार्ट है इसका एरिया निकालना है। ठीक है, देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि लार्जेस्ट एरिया पे 4 सर्कल सेट किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो सर्कल्स का डायमीटर रहेगा, इन दो सर्कल डायमीटर होगा। ठीक है, अगर हम 28 का हाफ करेंगे जस्ट तो हमें एक सर्कल का डायमीटर मिलेगा और उसका भी हाफ कर देंगे तो हमें जो सर्कल है उन सभी सर्कल्स की रेडियस मिल जाएगी। ठीक है, तो हम डायरेक्टली हम देखेंगे तो हम 28 में सीधे सीधे 4 का डिवाइड करा दें तो जो हमें नंबर मिलेगा वो इस हर एक सर्कल की रेडियस होगी। ठीक है, जैसा अगर मैं यहाँ देखा फिर से देखिए, जैसे कि 28 यहाँ तक है। ठीक है, तो 28 यहाँ तक इसका जो 2 सर्कल सेम का डायमीटर होगा। ठीक है, अगर 28 का हाफ करते हैं जिस 14, तो 14 जो होगा वो हर एक सर्कल का डायमीटर होगा इधर। ठीक है, अब हमें अगर उसका भी हाफ कर दिया जाए, 14 का हाफ कर दिया जाए तो रेडियस भी यहाँ से सीधे। ठीक है, अगर हम 28 का सीधे 1/4 करते हैं, इट मींस 1/4 करते हैं 1/4, तो हमें जो सभी सर्कल्स दिए गए हैं इन सभी सर्कल्स की रेडियस मिलेगी। ठीक है, सो रेडियस ऑफ अ सर्कल हम सीधा सीधा लिखेंगे यहाँ पर, रेडियस ऑफ सर्कल्स इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाय 4। यहाँ पर 4 डिवाइड बाय 4 कितना लगाया मैंने आपको वहां पर बता दिया है, 4 7 है 28 7। ठीक है, तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर जो है वो हर एक सर्कल की रेडियस होगी। अब यहाँ 4 सर्कल है तो रिमेनिंग एरिया ऑफ कार्डबोर्ड मैंने समझा दिया, रिमेनिंग एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर या फिर कह सकते हैं एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड माइनस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड माइनस 4 into एरिया ऑफ सर्कल। कितना होता है एरिया ऑफ कार्डबोर्ड? आपका सर्कल सीख में है, सर्कल का एरिया होता है साइड टू साइड व्हिच इज 20 into 28 माइनस 4 into एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर, pi value of pi is 20/7 and r is 7 into 7. Okay, see 28 into 28 ये होता है बेटा आपका 25 6 2 5 6 7 6 and बेटा ये होता है 7 8 4। ठीक है, 7 8 4 माइनस 7 7 कैसे होगा, ये हो जाएगा आपका 4 into माइनस करिएगा 14 minus 6 8 7 minus 1 6 7 minus 6 1 168 centimeter will be
द एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्ड। ओके, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 आप घर से करेंगे। ऊपर क्या करना, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे चूज करेंगे 1 to 10 वो आप घर से करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ही है क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सर्कल्स का रेशियो दे रखा है और उनका एरिया का डिफरेंस दे रखा है, तो आपको वहां से एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल फाइंड करना होगा, ठीक है। यू कैन ट्राई योरसेल्फ इफ देयर इज डाउट, तो आप सबमिट हो जाए, आपको समस्या हो तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है। और आपको प्रिपेयर करते रहिए टेस्ट G4 के लिए। आपका जो G4 का जो सिलेबस है वो आपको बता दिया गया है, तो कोई भी डाउट हो उसमें से तो आप वो भी कंसीडर कर सकते हैं। ओके।